Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is CA Dollywood. I am a qualified chartered accountant, qualified in September 2025 in my first attempt. And here is my new video. तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? This video is for those जिनका attempt था January 2026 में and जिनके कल result आए थे and those people who could not qualify. तो firstly, calm down yourself. इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि the papers were tough. The deciding papers were AFM and IBS and IDT. तो मोस्टली पीपल ने क्वालिफाई नहीं किया है. इट वॉज द पास परसेंटेज वॉज ओनली 10.97% फॉर बोथ ग्रुप्स एंड ओनली 7,590 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. So I can tell this attempt was tough when compared to previous two attempts, and it's okay if you have not qualified. This video is for all of you. I am here to provide you and assist you, provide you guidance कि आप लोग कैसे इस मई 26 में अपने आप को प्रूव कर सको. एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑलवेज बिलीव कि जो होता अच्छे के लिए होता. नाउ if you were previously aiming for only 50s, keep your aim higher. Keep your aim to 70 or 80 ताकि आप एटलीस्ट पास तो हो जाओगे. इफ यू एम फॉर हायर यू विल अचीव थिंग्स. आप खाली पास होने के बारे में मत सोचो. यू हैव टू पास विद एग्जाम्शन. यू हैव टू एम फॉर रैंक. अगर यू विल थिंक कि बोलना ईजी है, करना मुश्किल है, आई नो दैट, बट इफ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, इफ यू फील कि हाँ मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, and if you will give your 100%, definitely you will pass this attempt. Now I heard from few of my sources that पेपर AI से बनाया है. पेपर कैसा भी आए, पेपर कैसे भी बने, वी आर नॉट वरीड अबाउट इट. हमको बस ये सोच के प्रिपेयर करके चलना है कि पेपर आएगा तो टफ आएगा एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. तो ऑलवेज whenever you are preparing, do not keep in mind कि will I pass or not. You are preparing, you are learning to understand the things conceptually, to apply it practically, not to just achieve the degree but to use this knowledge in the future in the practical life as well. So keep yourself motivated and let us get ahead into the video ताकि आप लोगों के साथ मैं अपनी थोड़ी सी गाइडेंस शेयर कर सकूँ, आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकूँ कि आप लोग ये मई 26 का अटेम्प्ट क्लियर कर जाओ. सो आई होप गाइस आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी. सो दिस इज माई preparation planner for you guys. This is my preparation planner for you guys for May 26 attempts, which are 2 months away. तो आपको लग रहा होगा how can I complete it in 2 months? कैसे होगा ये 2 months में? But don't worry guys, if you are motivated, आप खुद को motivated रखोगे ना, 2 months are not less for you to clear and with very good marks. Even I had an attempt in my CA intermediate and मेरे पास सिर्फ 2.5 months थे because I was completing my orientation, I was completing my advanced IDT. So मेरे पास भी सिर्फ 2.5 months थे to complete my preparation for both groups with having exemption in advanced accounts. तो you can also clear. अब तो आपको सिर्फ 5 पेपर्स प्रिपेयर करना है along with IBS and आप लोग कर लोगे 2 months में. आई एम assuring you guys. बट खुद को आप मोटिवेटेड रखोगे, खुद के साथ डिसिप्लिन रहोगे एंड खुद को प्रॉमिस करो कि आई विल गिव माई 100% नो मैटर व्हाट इज द रिजल्ट. ओके. सो फर्स्ट January 6 में आपने अटेम्प्ट दिया, आपने क्लियर नहीं कर पाया, बट एक्सप्लेन योरसेल्फ कि ये अटेम्प्ट टफ था. एवरीवन कुड नॉट क्लियर. ऑब्वियसली वेदर द अटेम्प्ट इज इजी और टफ, आई विल नॉट गिव 100% पास परसेंटेज. लास्ट टाइम September 25 में it was 16%. Now it is only 10.97% क्योंकि the attempt was difficult and you could not clear it. So the attempt was tough and deciding papers इसमें थे IBS, IDT and AFM. AFM you can tell or you could not keep because it was tricky but it was not out of the box. मतलब out of the box question थे, but I think you could have attempted few of the questions, right? तो किसने क्लियर किया है Jan 26 अटेम्प्ट? 7590 स्टूडेंट्स तो पास हुए, 7590 क्वालिफाइड तो हुए, बट हुआ थी 7590. तो इफ यू सी द बाइफर्केशन, ग्रुप 1 का पास परसेंटेज वाज 21.03%, ग्रुप 2 का इट वाज 9.76 एंड जो दोनों ग्रुप पास कर पाए दैट वर ओनली 10.97 स्टूडेंट्स. मतलब अगर 20,000 स्टूडेंट्स ने दिया होगा तो इट इज अराउंड 2,000 स्टूडेंट्स टू 2.11%. 2,100 students could only pass approximately.
तो अब ये जो ग्रुप वन का पास परसेंटेज इतना एक्सेस आया व्हेन कंपेयर टू अदर टू, ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जो मे 25 एंड जो मई 25 और सितंबर 25 का अटेम्प्ट था, उसमें एफआर एंड एएफएम वर वेरी इजी पेपर्स, एंड इसमें काफी लोगों ने एग्जामिनेशन स्कोर किया था। जिसकी वजह से दे हैव टू ओनली प्रिपेयर फॉर ऑडिट और एफआर एंड ऑडिट या एएफएम एंड ऑडिट के लिए उनको प्रिपेयर करना पड़ा था। तो इस वजह से उनका ग्रुप वन पास परसेंटेज कुड बी वेरी मैनेजेबल। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स है जिनका तीनों भी एग्जामिनेशन नहीं था, बट द ग्रुप वन पेपर्स वर नॉट दैट टफ एक्सेप्ट फॉर एएफएम व्हिच वाज काइंड ऑफ ट्रिकी, इट वाज मैनेजेबल। बट आईडीटी एंड आईपीएस वर द डिसाइडिंग पेपर्स, जिसकी वजह से ग्रुप टू का पास परसेंटेज वेरी बहुत कम आया एंड बोथ का भी बहुत कम आया। इट कैन बी पॉसिबल दैट कि ये जो बोथ में जो पास हुए उनका एग्जामिनेशन वाज इन आईडीटी और IBS in previous papers, जिसकी वजह से they could have cleared DT और IET की वजह से भी they could have passed, but it can be very low number. Okay, so don't worry, you are not like incapable of qualifying. It is just that the timing was not right. But if you prepare well for May 26 and बस आप ये सोच के चलोगे कि पेपर्स टफ आएंगे and we are ready for the worst to worst situation, then you can definitely clear it. So आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है फॉर 2 मंथ्स? पहले तो अपना दिमाग को आप क्लियर करो, क्लियर योर माइंडसेट एंड फोकस ऑन योर गोल ऑफ क्लियरिंग सीए फाइनल and with very good marks. Not just clearing, but clearing it with very good marks. If you see, the competition in the market has been increasing, and if you just clear, if you want to just clear, it won't be any worth. So aim for higher. If you aim for higher, you will be motivated to clear. You have to focus on your goal, and you will definitely clear it. And don't panic कि 2 मंथ्स में कैसे होगा, मैं सिर्फ एक ही ग्रुप दूंगी, मुझसे नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? आप फर्स्ट टाइम थोड़ी पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। एंड अगर आपका मार्कशीट अगर आप देखोगे, तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि what groups are to be given and how you are going to study this. So here I am with my strategy for you guys to provide you with guidance कि आप लोग कैसे अपना प्रिपरेशन बना सकते हो, कैसे अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो। सो फर्स्ट इट इज एनालाइज योर मार्कशीट। जो आपने जनवरी का एग्जाम दिया था उसकी जो मार्कशीट है उसको आप पहले एनालाइज करो। अभी एनालिसिस में क्या होगा, फर्स्ट आप हर पेपर का मार्क देखो, एफआर, एएफएम, ऑडिट इन ग्रुप वन, डीटी, आईडीटी इन ग्रुप टू, ये जो 5 पेपर्स है उनके आप मार्क्स देखो। अगर इन एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स अगर आपको लेस देन 35 आ रहा है, मतलब यू वर लैकिंग समवेयर इन योर प्रिपरेशन, राइट? सो एटलीस्ट अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है या आई कैन नॉट go with both groups with this less marks, then aim for any one group, either group 1 or group 2. बट अगर आप ग्रुप 2 के लिए जाओगे तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप के पास along with law and costing you have to have knowledge of FR, AFM and audit as well. Law, costing, FR, AFM and audit, ये 5 का आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, ताकि अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो यू हैव टू बी एबल टू आंसर वेदर इट इज ऑफ FR, AFM, ऑडिट और लॉ और कॉस्टिंग, किसका क्वेश्चन है एंड व्हाट टॉपिक इट रिलेट्स, एंड अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आए तो हाउ यू आर गोइंग टू टैकल इट, राइट? सो लेकिन अगर आपका कोई भी पेपर में मोर देन 35 मार्क्स, मतलब सारे पेपर्स में मोर देन 35 आ रहा है या आपका सिर्फ एग्रीगेट की वजह से रह गया, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स। अगर आपका दोनों में भी दोनों ग्रुप्स के 5 पेपर्स में इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 35, इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 35 इन बोथ ग्रुप्स, देन यू हैव टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स कैसे भी करके। यू नो, आपको लगेगा कि हाउ विल आई डील, इतने टफ पेपर्स आए थे, हाउ विल आई डील विद दिस अगेन, बट डोंट वरी, यू विल क्लियर इट। आपके पास ऑलरेडी प्रायर नॉलेज है, आपका सिर्फ एग्रीगेट की वजह से गया है एंड मे बी 5 मार्क्स इधर उधर की वजह से, but you will definitely clear it if you are going to give both groups. It can also be possible कि आपका aggregate से आप pass भी हो जाओ, right? So go for both groups, and if you are not able to take that pressure, then you can go for one single group. But I suggest if you are scoring more than 35 in all the papers except for IBS, तो आप both groups के लिए ही जाओ। और अगर 2 या ज़्यादा पेपर्स में out of these 5 if you are scoring less than 35,
देन यू मे एम फॉर वन ग्रुप इफ यू फील दैट योर प्रिपरेशन, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका हो जाएगा दोनों ग्रुप, तो आप डेफिनेटली दोनों ग्रुप के लिए जा सकते हो। ओके, नाउ व्हाट अबाउट आईबीएस। आईबीएस का पेपर इतना टफ आया दैट यू विल फील कि कैसे डील करें। आईबीएस तो ओपन बुक था, वी थॉट इट वाज द इजीएस्ट पेपर, बट एक्चुअली इट बिकेम द डिसाइडिंग पेपर फॉर योर रिजल्ट। तो कैसे डील करें? तो पहले तो आप अपना एक प्लान स्ट्रेटेजाइज करो। आपको डेफिनेटली एक मॉक देने की जरूरत है। इफ यू गिव अ मॉक, यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग कि आपको पेपर में कैसे डील करना है। प्रॉपर 4 आवर्स का प्रॉपर सिटिंग में आपको मॉक देना है। 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर रीडिंग आपको करना है। एंड इस 15 मिनट्स में आपको क्या करना है मैं वो भी बताऊंगी। एक बार आप ये अगर प्रॉपर मॉक टेस्ट दोगे तो यू विल हैव क्लैरिटी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। राइट, सो मॉक टेस्ट इज वेरी रिक्वायर्ड। कौन सा मॉक दोगे आप? प्रीवियस अटेम्प्ट का भी दे सकते हो, प्रीवियस अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, करंट अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। एनी पेपर यू कैन अटेम्प्ट, बट चूज द टफेस्ट वन। इट वाज Jan 26 आई फील, September 25 का भी आप दे सकते हो, but at least give one mock. Don't miss on mock again. Okay, then you have to have a good understanding. Not I'm telling advanced, but basic understanding. Yeah, at least you should know that it what topics it relates to, what the question is related to. You should have understanding of law and costing, because the law and costing are not in your main papers and you have attempted in self-paced model. You might have not a good understanding, क्योंकि तब हम एमसीक्यू में तब हम पास करने के मोटिव से रहते हैं, तो वी विल नॉट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, बट एक्चुअली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका वेटेज इफ यू सी इन द होल पेपर इट इज अराउंड 40 to 50%। दोनों का मिला के 40 to 50% बनता ही है आपके एग्जाम में। सो डेफिनेटली डोंट इग्नोर दिस लॉ और कॉस्टिंग। ओके, देन हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो पहले आप जब 15 मिनट्स का रीडिंग करते हो, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर में मार्क करना है that which topic it relates to, which paper it relates to, what is the topic। इंडेक्स में आप ग्लांस करके आप बेटर एक्सेस के लिए वहां पर मार्क करके रख सकते हो दैट इट बिलोंग्स टू दिस टॉपिक एंड इट इज एट सो एंड सो पेज नंबर। ऐसे आप प्रॉपर आईसीआई मटेरियल्स अपने जो भी फैकल्टी के नोट्स है, यू हैव टू कीप इट अरेंज, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर। अंडरस्टैंड करो कौन से पेपर को रिलेट कर रहा है, कौन से इंडेक्स में से कहाँ से टॉपिक लिया हुआ गया है, एंड मेंशन योर क्वेश्चन बिसाइड योर क्वेश्चन। ऐसे भी थोड़े टॉपिक्स होते हैं जैसे कि इफ यू सी ट्रांसफर प्राइसिंग, इट इज बोथ इन कॉस्टिंग एज वेल एज डायरेक्ट टैक्स। सो यू माइट गेट कंफ्यूज कि कौन सा टॉपिक किस चीज को रिलेटेड है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड डीटी और वहां पर हमने क्या पढ़ा था, मेथड्स पढ़े थे, टैक्सेशन का पढ़ा था, सेफ हार्बर रूल्स के बारे में पढ़ा था। इट वाज ऑल फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कॉस्टिंग में इट इज डिफरेंट। सो इफ यू understand the question and if you answer it in that way which the subject it belongs to, तो आप वैसे आंसर करके देख सकते हो। एंड आई सजेस्ट 4 आवर्स में तो आप प्रॉपर एग्जाम जैसे लिखना, बट जो एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ोगे उसको भी आप एक बार ग्लांस कर लेना कि वो कैसे क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में यू डोंट नो विच क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। सो डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन इन ऑप्शन एंड हैव अ knowing have a knowledge of everything। okay, देन मेंशन सेक्शन नंबर, क्योंकि आप ओपन बुक टेस्ट के हिसाब से लिखते हो तो सेक्शन नंबर कोट करना इज लाइक मैंडेटरी चीज हो जाती है, क्योंकि इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। इफ यू डोंट मेंशन इट यू माइट लूज मार्क्स। सो मेंशनिंग ऑफ द सेक्शन इज इम्पोर्टेंट। कीवर्ड्स को यूज करो, क्योंकि आपके पास ओपन बुक्स का एक्सेस है, यू कैन बेटर फाइंड फॉर प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर कीवर्ड्स एंड हाईलाइट दोज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ताकि जब इवेल्युएट करोगे, जब इवेल्युएटर आपकी शीट को इवेल्युएट करेगा, he will find the important points which is required in the answer and definitely he will give marks based on that important points। this is not only for IBS but for all papers, क्योंकि मैंने भी अपने एग्जाम में ये ट्रिक अप्लाई की थी and it made my work easier because if you see AFM का पेपर I had so many cuttings, I had almost every answer में एक कटिंग था, बट फाइनल आंसर में आई हैड पुट द बॉक्स में रखा था मैंने फाइनल आंसर को, जिसकी वजह से इवेल्युएटर को इवेल्युएट करने में इजी हुआ एंड आई कुड स्कोर 83 इन माय AFM। राइट, सो हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मेंशन सेक्शन, कीवर्ड्स को, कौन सा सब्जेक्ट है, किस टॉपिक से लिया गया है, ये क्वेश्चन पेपर में आप मेंशन करना। दिस शुड बी योर मेन आंसर। एंड जब आप टेस्ट कंप्लीट करते हो व्हेन यू आर इवेल्युएटिंग, कंपेयर इट विद द आईसीआई का सजेस्टेड आंसर, कि आपको समझ आएगा कि आईसीआई क्या आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एंड हाउ यू आर आंसरिंग एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर आंसर्स। राइट, सो कंपेयर इट विद सजेस्टेड आंसर। तो आप आईबीएस से डील करने के लिए पहले एक मॉक लिखोगे, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी है लॉ की एंड कॉस्टिंग की।
क्वेश्चन पेपर जब आप मॉक टेस्ट लिखोगे तो आप प्रॉपर 4 आवर्स का लिखोगे, 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए भी दोगे। एंड जब आप क्वेश्चन पेपर रीडिंग करोगे उसमें आप सब्जेक्ट देखोगे, इंडेक्स देखोगे, कौन सी टॉपिक के लिए है, बेटर एक्सेस के लिए बाजू में लिख लोगे। व्हेन यू आर आंसरिंग यू हैव टू मेंशन section, keywords and highlight the important points and suggestion answers है at the time of evaluation to improve your answers, right? Then आपने स्टैन अटेम्प्ट दिया था but could not clear, I know, but ये certified copies could be helpful to understand where you were lacking or where you did mistakes or where you did minor mistakes जिसकी वजह से it cost you marks। तो वो चीज़ों को जब आप देखोगे समझोगे, do not panic from those mistakes but try to understand those mistakes and try to not repeat those again in your exam again, right? So these are not to panic you but to help you teach lesson। you have to take lessons कि आप क्या mistakes कर रहे थे, कैसे present करना है आपको answers, and when you are comparing with suggested answers you will understand what the ICI is asking। and even on ICI BOS portal जब आप सजेस्टेड आंसर देते हो वहाँ पर एग्जामिनर कमेंट करके एक दो पीडीएफ रहेंगे फॉर बोथ ग्रुप्स, राइट? एग्जामिनर कमेंट करेंगे। So what is this examiner comment? Examiner comment will tell you what the examiner was expecting from your answer, what he was expecting and how you have answered and what were the common mistakes done by the students, right? So read those comments if you have time, right? Then when you are preparing when you are preparing during this 2 months, पहले आपको आपका जो पोर्शन है 6 पेपर्स 5 पेपर्स का उसको आपको सेग्रीगेट करना है। वो सेग्रीगेट आप किस बेसिस पे करोगे, ए और बी कैटेगरी। देयर इज नो सी कैटेगरी। सी कैटेगरी का मतलब क्या है, इट इज लेस इंपॉर्टेंट, बट आपको इतना तो समझ आ गया होगा ज्ञान अटेम्प्ट से दैट नथिंग इज अनइम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो यू हैव टू कैटेगराइज इन ए एंड बी कैटेगरी। अब ए कैटेगरी में आपका क्या आएगा, जो भी पेपर्स में से जो भी आपके टॉपिक्स डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल के लिए इफ यू आर सेइंग एफआर में if you find consolidation का topic is very difficult, mark it as a category। it is also important and compulsorily asked question in question number 114 मार्क के लिए, तो वो वैसे भी important बन जाता है एंड इसका कवरेज भी अच्छा खासा है। सो डेफिनेटली यू हैव टू मार्क दिस कंसोलिडेशन एज ए कैटेगरी। एंड वैसे क्वेश्चंस को आप ज़्यादा फोकस से कंसंट्रेशन करके आप सॉल्व करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड गेन अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैसे डील करना है, कैसे आंसर करना है इसको क्वेश्चन इन एग्जाम। सो डिफिकल्ट टॉपिक या जो भी कंपल्सरीली आज टॉपिक है जैसे कि कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इफ यू टेल, बट इफ यू सी इनकम टैक्स या प्रोविजन वाले चैप्टर्स दे आर नॉट कंपल्सरीली आज इन द क्वेश्चन, बट इफ यू फाइंड दोस एज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि आपके लिए कहीं भी यहाँ डिफिकल्टी आ रही है, so definitely you have to put in a category and you have to solve those and focus on those areas। तो वैसे आपको सेग्रीगेट करना है इन ए एंड बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में आपका क्या आएगा, जो भी मैनेजेबल टॉपिक्स है जैसे कि आपका इंडेस 2 हो गया या इंडेस 16, 36, 38, 40, 105, ये वाले जो क्वेश्चन आप इंडेस के टॉपिक्स हो गए, इन सबको आप बी कैटेगरी में अगर आप डाल सकते हो एंड इफ दे आर मैनेजेबल फॉर यू, दे हैव सिमिलर टॉपिक्स, तो यू हैव टू सेग्रीगेट एंड यू हैव टू प्लान कि आप इसको बाद में फोकस से पढ़ोगे। बट डू नॉट, 5 डे होता है, आप उसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, राइट? यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल टॉपिक्स, यू कैन नॉट। सो योर प्रिपरेशन बिगिन फ्रॉम द डे 1, नॉट एट द 1.5 डे आपको पता चलता है, इट बिगिन फ्रॉम द डे 1। मतलब आप जब भी 2 मंथ्स का जो डे 1 है तब से आपका प्रिपरेशन चालू हो जाता है। यहाँ पर भी आप जो पढ़ते हो इवन दैट इज यूजफुल फॉर योर एग्जाम। यू नेवर नो कि आपको कहाँ से कौन सा टॉपिक पूछा गया है एंड योर प्रिपरेशन बिगिन फ्रॉम द डे 1। जब आप फर्स्ट डे से फोकस से रहोगे देन ओनली यू कैन ट्राई टू अचीव द रैंक का गोल, राइट? तो आप क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, LDR 5 स्टार मार्क कर लेना। दैट इंक्लूड्स किस बेसिस पे आप करोगे, कवरेज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस, अगर उसमें कोई नया पॉइंट है या आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इस बेसिस पे आप क्वेश्चंस को 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार में कर सकते हो। एंड लास्ट डे के लिए आपको क्या क्या रिवाइज करने के लिए रखना है वो आप कर सकते हो, राइट? इन दिस वे इफ यू आर डूइंग, ये आप कब करोगे, यू माइट हैव ऑलरेडी डन दिस इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट। आपने ऑलरेडी प्रीवियस अटेम्प्ट में किया होगा, आप उसको री इवेल्युएट कर लेना। अदरवाइज इफ यू हैव नॉट डन दिस, सो यू हैव टू डू इट नाउ व्हेन यू आर रिवाइजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड जब आप रिवाइज करोगे तब आप मार्क करके रख लेना कि आपको कैसे क्या पढ़ना है।
इवन आई डिड द सेम ड्यूरिंग दैट मिस्टेक ड्यूरिंग माई CA इंटरमीडिएट। मैंने जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब मैंने कुछ भी मार्क करके नहीं रखा था। फॉर May 22 का अटेम्प्ट आई डिड नॉट मार्क, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, आई वॉज नॉट strategizing, and that was the major blunder I did. So when my attempt was in November 22, पहले मैंने ये फोकस किया कि मेरे लिए क्या टॉपिक्स टफ थे, देन आई हैव मार्क कौन से टॉपिक्स मुझे पहले करना है। आई हैव प्रिपेयर्ड अ होल प्लान इन माई एक्सेल, वॉट एवर इज कम्फर्टेबल फॉर यू, वेदर इट इज एक्सेल और ऑन पेपर, वॉट एवर इज इट। आज बैठ के आप अपना प्लानर बनाओगे कि आपको कैसे किस चीज से कैसे डील करना है, राइट। एंड व्हेन यू हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दिस, देन मार्क करोगे तो योर प्रिपरेशन इज गोइंग इन द राइट वे। एंड माई प्रो टिप फॉर ऑल ऑफ यू इज, आफ्टर एवरी रिविजन, आप जितने भी रिविजन कर रहे हो, आफ्टर एवरी रिविजन गिव वन टेस्ट, एटलीस्ट एक टेस्ट तो देना ही है आपको। एंड सॉल्व RTPs, MTPs। RTPs आर वेरी इंपॉर्टेंट, RTPs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली इंस्टीट्यूट आपको ना RTP में से डायरेक्ट क्वेश्चन देती ही देती है। डो नॉट इग्नोर RTP। अब RTP आपको कौन सा करना है? RTP आपको करना है Jan 26 का, RTP आपको करना है May 26 का, एंड इफ पॉसिबल आप September 25 का भी RTP कर लेना, बिकॉज लास्ट 3 अटेम्प्ट के RTP में से पक्का पक्का क्वेश्चन आता है। जो आप मे के लिए तैयारी कर रहे हो, पॉसिबिलिटी इज मोस्ट कि आपको मे के RTP में से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए, एंड इट विल बी बोनस मार्क्स फॉर यू। सो डू नॉट इग्नोर RTP। RTP इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्राई टू गिव अ टेस्ट सो दैट यू विल हैव अ क्लैरिटी कि कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ पर आपको फोकस करने की जरूरत है, एंड आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो। एंड व्हाट विल बी योर मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स हो गया आप उसको एक लिस्ट में लिख लेना कि ये मिस्टेक्स है मेरे, एंड आई हैव टू कीप फोकस ऑन दोस मिस्टेक्स। एंड एक बार जब एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करने जाते हो, ऑन द डे ऑफ एग्जाम यू कैन रिफर दोस मिस्टेक्स ताकि आपसे एग्जाम में वो गलती ना हो, राइट। देन आप कैसे प्लान करोगे? जो आपका फर्स्ट डिवीजन रहेगा, अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, ट्राई टू फिनिश, क्योंकि यू विल हैव 5 पेपर्स इन हैंड टू डील विद, एंड इवन एन IBS का मॉक टेस्ट। तो ये 5 पेपर्स को डील करने में, इवन इफ यू गिव नाउ इट इज मार्च का 4 वीक्स, इफ यू सी March 31 ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके हैं, so you have 29 days of March, and if you are taking first week of April, so it will be 7, so total you will have 35 days। let us understand कि 35 days है आपके पास, तो उसमें आप 5 पेपर्स को अगर आप 1 वीक भी दोगे, 1 वीक का प्रिपरेशन भी दोगे, तो आपका फर्स्ट वीक तक आपके दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड सेकेंड डिवीजन ऑफ अप्रैल का बाकी का जो पूरा महीना है, यू कैन कंप्लीट योर सेकेंड डिवीजन इफ यू आर मोर लाइक नंबर ऑफ रिविजन्स पे आपका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है, क्योंकि थोड़ा माइंडसेट का भी गेम होता है कि आपका नंबर ऑफ रिविजन्स पे आपका फोकस है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम ज़्यादा होता है। तो यू कैन सेग्रीगेट इट इनटू द 2 वीक्स कि आप सेकेंड डिवीजन नेक्स्ट 2 वीक्स में करोगे, एंड थर्ड रिवीजन आप लास्ट पेपर से स्टार्ट करना, IDT, देन DT, देन ऑडिट, देन AFM, एंड देन FR, ताकि FR आप एग्जाम के टाइम पे डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। सो यू कैन प्लान फॉर 3 रिविजन लाइक दैट। और इफ यू आर प्लानिंग ओनली फॉर 2 रिविजन, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को irrespective of number of revision I want to get more conceptual clarity, so first revision by April first week by giving one week to each paper, and 1-2 days for IBS you can complete by April first week, and then second revision you can give April का बाकी का पूरा महीना, and you are ready to give May का attempt with confidence, right? And if you are aiming for single group 1 और group 2, आपको प्लान करना है कि आपका March 3rd वीक तक आपका फर्स्ट डिवीजन हो जाए। March 3rd वीक, क्योंकि आपके पास अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो और अगर आपका कोई एग्जामेशन है, यू विल हैव आइदर 3 और 2 पेपर्स ओनली टू डील विद, आपका इजीली हो जाएगा इफ यू आर गिविंग टिल March 3rd वीक। March 3rd वीक मतलब अप्रोक्सीमेटली यू आर हैविंग 15 to 20 days, 15 to 20 days। if you give for each subject, if you give 5 to 7 days, you can easily complete single group के लिए March 3rd वीक तक, एंड इफ नॉट कम्प्लीटेड यू कैन टेक मार्च का पूरा महीना, एंड April फर्स्ट वीक से यू कैन स्टार्ट योर रिविजन। सेकेंड डिवीजन फॉर सिंगल ग्रुप अगेन ट्राई टू कंप्लीट इट बाय April सेकेंड वीक और April 3rd वीक if you are giving group 1, but if you are giving group 2 try to complete it by April 2nd वीक only। एंड थर्ड डिवीजन भी अगर आप पॉसिबल कर सकते हो,
क्योंकि अगर आपका सेकेंड वीक तक हो रहा है, नो इफ यू आर नॉट एबल टू कम्प्लीट बाय सेकेंड वीक, ठीक है, आप अप्रैल का पूरा महीना लेना एंड कंप्लीट योर सेकेंड ग्रुप का रिविजन प्रॉपरली। बट अगर आप थर्ड रिविजन के लिए एम कर रहे हो तो स्टार्ट बाय अप्रैल लास्ट 2 वीक सेम लास्ट से जाना। अब इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर group 2, first you have to complete IDT and then DT. You will even have time for group 2 के दिन, क्योंकि आपका एग्जाम बाद में स्टार्ट होगा, you will even have make a first second week to prepare, so you can even plan for fourth revision. But if you are not concentrating on number of revision, you can segregate your time with 3 revision, ताकि आप ज़्यादा फोकस यहाँ पर 10 days, यहाँ पर 1 week, यहाँ पर 7 days और यहाँ पर 3 days का प्लानर बना के भी चल सकते हो। But if you are attempting first group, you will not have excess days of May. So you have to plan to complete it by third week. If possible, complete by second week or give second division whole April का महीना and have a better quality. ये नहीं कि आप सिर्फ 2-2 घंटे पढ़ोगे दिन में या 4-4 घंटे पढ़ोगे, नो. You have to study for 12 hours, 10 to 12 hours at least, and you have to aim for quality study, not on quantity, but concentrate on your quality. Number of revisions does not matter, but quality of revision matters. राइट, इट इज ऑल माइंडसेट का गेम. व्हेन जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे ना, उतना आपके लिए इजी रहेगा कि आप अपना स्कोरिंग चांस बढ़ा सकते हो, राइट, क्लियरिंग चांस बढ़ा सकते हो. एलोकेट 4-5 days बिफोर फर्स्ट पेपर. अगर आपका फर्स्ट एग्जाम FR है तो 4-5 days बिफोर द एग्जाम आपको सिर्फ VI पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करना है. अगर AFM है तो वैसे ऑडिट, IDT, DT, वॉट एवर इट इज, 4-5 days तो आपको एलोकेट करके रखना है फॉर योर फर्स्ट पेपर. वहाँ पर आपको किसी और सब्जेक्ट को उठाना नहीं है. एंड फ्रॉम हियर योर प्रॉपर एग्जाम बिगिंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आई नो यू विल कंप्लीट इट. You are just a few steps away from getting a CA title. Don't panic, it was a tough attempt, and many people like you have not cleared. But it is your chance कि आप दूसरों से कैसे आउटस्टैंड करोगे. When you are keeping yourself motivated and positive, आप लोग definitely clear करोगे. Do not focus कि दूसरा जन क्या कर रहा है. He is giving one group or he is giving both groups. Do what suits you, what you are capable to do, and how you can do it. Do not concentrate on others, but concentrate only on yourself. Right? Right. So all the very best everyone. I hope ये वीडियो आपको काम रही होगी. प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को. और ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपके लिए नेक्स्ट कौन सा वीडियो मैं लेके आऊँ. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको पूरी हेल्पफुल रहूँ एंड support you guys with your exams. Do not panic. All the very best for your exam and share to your friends so it helps them as well. Right? So all the very best. Bye bye. Tata. See you soon.